जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आनंद रंगनाथन का वीडियो। बात करने जा रहे हैं हिजबुल्लाह और इज़राइल के बारे में। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Khan has made her inclinations amply clear. I am astonished that a simple question was asked of her. Who do you think was Nasrallah? And she said, it is not for me to answer it. What if you were to ask her, Pranesh, who was Osama bin Laden? Would her response be the same? I'm intrigued to find out. So please ask her who was Osama bin Laden. I said, I am not here to describe the history of the regime. I am not here to answer some kind of Wikipedia question. Ms. Khan, this is not Wikipedia. These are not ordinary individuals that we are talking about. These are dreaded terrorists, global terrorists. And you can't get yourself to even name them? Dr. Ranganathan. Yes, anyhow, as I said, the inclinations are very clear. But, I want to stick to India because although 1.15 billion Indians stand with Israel, the rest don't. You have to understand the psyche of those who understand and this whole predicament, and they are, despite this, standing against Israel. Pranesh, have you ever wondered that a small sliver of land surrounded by the richest, the wealthiest nations in the world, the Arab states, remains the poorest? When the same nations have converted deserts into Dubai, and yet Gaza remains the poorest, filthiest, sickest, most dangerous of places in the world. Why? Because they want to play the victim card. Just like after they start the violence, kill Jews, they march down their dead killed in retaliatory Israeli action, where most of them are human shields, to show the world that Israel is the oppressor. They project Gaza as an open-air prison and gutter because Israel has made it so, they say. They care more about denigrating Israel than about developing Palestine. That's the truth. And why do these leftists and Islamists who want to ban India's trade with Israel not demand a ban on India's trade with China, given that China has demolished 700-800 mosques and interned 1.5 million Muslims in concentration camps and is feeding them pork and sterilizing them because their salaries would stop? The point of the matter, as I said, is 1.15 billion Indians stand with Israel, shoulder to shoulder. Because supporting Israel is not only moral, it is imperative that we do so. We'll be repaying a debt, and that is what friends do. Let me explain first the debt, Pranesh, very briefly. Have we forgotten that in the wake of Pokhran II, when the world slapped sanctions against us and Pakistan invaded us in Kargil, the tide was turned by Israel supplying us with weaponry, going against world sanctions? Let us also not forget that all Arab friends ditched us during our 1971 war with Pakistan. It was Israel that came to our help despite America warning it not to. Facts that emerged from the explosive Haksar papers. And how did we repay Israel then? By not backing it during its Yom Kippur war in 1973. Now the moral question, very briefly. I would like to make a few points and they need to be internalized because these are irrefutable facts, not opinion. Hamas and Hezbollah use residential areas and hospitals as ammunition dumps and patients as human shields, rendering Geneva Convention invalid. And here is the thing. The hospitals in Gaza were safe and functioning well till October 6 last year, weren't they? And they would have continued to be safe and function well beyond had Hamas not murdered 1,400 innocent Jews and microwave babies in October 7 and brought this war upon itself. So let me be clear. Hamas and Hezbollah alone are responsible for the Gaza tragedy. Chris Blackburn, before I bring you in, I quickly want to bring in Major Gaurav Arya. Major Arya, the kind of commentary we've seen over the last 2 days, does it concern you? People who are talking about human rights suddenly changed goalposts, changed their stance, and were cheering for Iran that launched missile strikes on innocent Israelis. No, you see, I would agree with what Dr. Ranganathan just said, and I think it makes a lot of sense. And before I answer your question, I would like to add that we did wrong to Israel, right? There was a time when Israel helped us. We did not even recognize Israel. So there is much to be made up. And I think India should stand very firmly, no if, no but.
Now, I would also like to say that, all this nexus of the radical Islamists and leftists, what they're doing is painting Iran to be the victim. Iran is the head of the snake. Let's be clear. I would go as far as to say that the real problem is not Hezbollah or Hamas. The real problem is Iran. We must recognize this problem. It is Iran that is funding the Hezbollah. It is Iran that is funding and arming the Houthis. It is Iran that is arming the Hamas. Why should Ms. Khan get so upset about the killing of Nasrallah? Is he an Iranian national? Or was he an Iranian national? Why is she so concerned about Gaza? Let me tell you. This is nothing except, in some Muslim countries, they've got together and made it a Muslim problem or a Muslim issue. And they are also correct. Because this is exactly why they hate the Jews. I will say this very loudly and let anybody who has a problem understand this loud and clear. They hate Israel not because of this so-called fake narrative of occupation of Palestine. They hate Israel because more than 80% Israelis are Jews. They hate the Jews, and this hate has been continuing for more than 1400 years. This is religiously sanctioned hate. Right? Now, among the left and the Islamist nexus in India, they will never say anything to China. They will not even say anything to Saudi Arabia. Saudi Arabia, by the way, bombed and killed more than 3 lakh Yemenis, that is 300,000 Yemenis. They conducted airstrikes. Nobody even talks about it. And what are these figures they are giving about Gaza? Who has given these figures? Who has counted the dead bodies in Gaza? These are all Hamas figures, the so-called Health Ministry of Gaza. What is Health Ministry of Gaza? It's nothing but Hamas. I think what Israel must do is hit back. Hit back Tehran so hard that their mad clergy, this complete lunatic of a man, right, who's the supreme leader of Iran, he needs to go. This regime needs to fall because they are the people. They are poisoning the entire Middle East. Unfortunately, we have some sort of a relationship with Iran. I don't know why. I disagree with our relationship with Iran. But the problem is that Iran is the source of all poison. That is why nobody likes them. Many Muslim countries don't like Iran. They dislike Iran because Iran arms and funds terror groups. It is not just that they're doing it to the Israelis. They're doing it to Saudi Arabia. They're doing it to Jordan. They're doing it to Iraq. They're doing it to Syria. They're doing it to Yemen. They have spoiled and vitiated the entire atmosphere of the Middle East. And this regime needs to go. I stand with Israel. I think we need to make up for what wrong we have done to Israel in the past. We carried out Balakot. Where do you think those Spice 2000 bombs came from? They came from Israel. Who helped us with the laser-guided bombs in Kargil? It was Israel. Israel has stood with us even when we did not have diplomatic relations with Israel. And how did we repay Israel? How did we repay? We have not been good friends. Now we have started to be good friends, and we must stand with Israel. I personally, as an individual, stand with Israel, and I think the entire Indian nation should stand, the government should stand firmly behind Israel. Yeah, so, Major Arya, you are being charitable. What you are saying is that stop this monkey balancing, stand with Israel. That is what you are saying. Ms. Khan, you were talking about, the retaliation from Israel, and you said, bring it on. Chris Blackburn, how do you think Israel will respond? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात है। दोस्तों वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप करे तो सबसे पहले आप लोग देख सकें और उसके ऊपर अपना राय व्यक्त कर सकें। तो फिर इस वीडियो में आनंद रंगनाथन और मेजर गौरव आर्या बात कर रहे हैं और वो बात हो रहा है इज़राइल, हिज़्बुल्ला, हमास और उधर के जो अरब स्टेट्स हैं और ईरान, इन सारे के सारे जो खाड़ी देश के स्टेट्स हैं उनके ऊपर हो रहा है। और खाड़ी देश में एक ही स्टेट है जो रियलिटी में एक डेमोक्रेसी है, वो है इज़राइल। और इज़राइल में 7 अक्टूबर 2023 में अटैक हुआ था। एक बहुत नृशंसी अटैक हुआ था, एक बहुत दर्दनाक अटैक हुआ था। उधर औरतों को का जो यौन उत्पीड़न हुआ था, रेप हुआ था, बच्चों को ओवन में डाल के मारा था और भी बहुत गंदी चीज़ें किया गया था। ये जो
सेक्युलरिस्ट बोलते रहते हैं ना कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, और उनकी जो सेक्युलरिस्ट अभी भी प्रेस करते जाते हैं, अभी भी उन लोगों को विक्टिम बोल रहे हैं। जो पैलेस्टीनियन लोग हैं वो होंगे विक्टिम, कुछ तरीके से वो भी विक्टिम हैं, पर जो गाज़ा की जो स्ट्रिप है ना, उसमें जितने भी पैलेस्टीनियंस हैं उन लोगों ने हमास को वोट किया था, उसको पावर में लेके आए थे, और इनके जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उन सब को हमास से बहुत प्यार है। वो इज़राइल से नफ़रत तो करता ही है, पर हमास से बहुत सारे लोगों को प्यार भी नहीं होगा तो फिर वो इज़राइल से प्यार भी नहीं करेगा, इज़राइल से तब भी नफ़रत करेगा। वो PLO को सपोर्ट करता होगा, और कोई और पार्टी होगा उधर का जो पैलेस्टीनियंस का, तो फिर वो उस पार्टी को सपोर्ट करेगा, पर इज़राइल को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। उनको इज़राइल से कट्टर नफ़रत है, और नफ़रत होना भी एक अजीब व गरीब तरीका है उन लोगों का। और उसके बाद जो 200 लोग अभी भी, बहुत सारे 200 लोग जो हॉस्टेज हैं उसमें से बहुत सारे मर भी गए होंगे अभी, और उन लोगों को कैसे रखा होगा पता भी नहीं हम लोगों को अभी, क्योंकि ये कैसे कैसे अंडरग्राउंड टनल्स में लेके जाके रखा है बच्चों को, औरतों को, खासकर औरतों को इन लोगों को बहुत ज़्यादा उठा के लेके गए हैं लोग। और आप लोगों को तो इनफेमस वीडियो भी दिखाई दिया होगा जिसमें स्कूटी में बिठा के एक लड़की को लेके जा रहे थे, उसको वापस लेके आ गए एक्सचेंज के दौरान। और पहले एक और बात बोल रहा हूँ मैं, ये पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट है, ये अभी इतना ज़्यादा अरब खाड़ी देशों से नहीं हो रहा है। वो पैसे का सपोर्ट कर रहे हैं, पर उनके जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका जो स्टेट है, जैसे सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, ओमान हो, कतर नहीं, ओमान हो, दूसरे भी कुवैत हो, ऐसे देशों में उनके जो रूलर्स हैं, जो टॉप में बैठे हुए हैं, उनको वो सपोर्ट नहीं करते हैं ऐसे मूवमेंट्स को। अब ये जो मूवमेंट है, नाम क्या इसका, ये पैलेस्टीनियन मूवमेंट, ये टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट, टू स्टेट सोल्यूशन को तो सपोर्ट करते होंगे, पर ये जो हमास है और PLO है, इनका जो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ है ना, उसको नहीं सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उनके जो इंटरेस्ट है उससे बिल्कुल उल्टा जाता है, और उसका बहुत गलत परिणाम हुआ है। तो फिर देखिए, वो जो भी पैलेस्टीनियंस और अरब लोग थे, वो अभी बहुत सारे लोग जो कट्टर थे वो USA में जाके चले गए, UK में चले गए, यूरोप में चले गए, और उधर बैठे। और यूरोप में तो आप लोगों को पता ही होगा, रेफ्यूजी इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हुआ है, जैसे सीरिया से गए थे, इराक से गए थे, पाकिस्तान से भी गए थे बहुत सारे लोग, अफ़गानिस्तान से भी गए थे। इधर जो हालत ये USA के मिलिट्री ने किया था, उसके बाद उधर जाके अपना जो बसेरा है उधर जाके बस रहे थे। और उधर अभी जब ये क्या बोलते हैं, ये इज़राइल ने अपना ऑफेंसिव में गया, तो फिर ये यूरोप में जाके, US में जाके अपना जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और US, UK, यूरोप में अभी ये जो बच्चे हैं ना, कॉलेज के बच्चे, इनको इतना ज़्यादा इंडोक्ट्रिनेट कर दिया है इज़राइल के अगेंस्ट, इतना ज़्यादा एंटीसेमिटिक बना दिया है, क्योंकि ये जो पूरी तरह एकेडेमिया को कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है, लेफ्टिस्ट लोग करते हैं, लिबरल लोग करते हैं। और वो लोग इन लोगों को यही पढ़ाते हैं कि ये फ़िलिस्तीनियंस आर द ऑप्रेस्ड, और जो ऑप्रेसर है वो इज़राइली लोग हैं। इज़राइली लोगों को तो ये फ़िलिस्तीनियंस बोलते हैं, टू द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। और बोलते हैं कि इज़राइल नाम का स्टेट ही नहीं होना चाहिए। वो पूरा जो इज़राइल जो बना हुआ है अभी, जहाँ जूइश लोग रह रहे हैं, उसको पूरी तरह जूइश लोगों को खाली कर देना चाहिए, भाग जाना चाहिए, हमको पूरा देश चाहिए, अदरवाइज़ वी वाइप देम आउट, ये बोलते हैं वो लोग। और उनको कोई गम और शिकवा भी नहीं है उसके ऊपर। और यही गलती हमारा स्टेट भी कर रहा है अभी, इंडिया का स्टेट भी दिखाई दे रहा होगा आपको। यही कश्मीर में चल रहा है। कश्मीर में अभी पीस होगा, पर वो पीस धीरे धीरे निकल जाएगा। जब वो प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे, तब उनका जब रेडिकलाइजेशन ख़त्म नहीं होगा, तो प्रॉस्पेरिटी के साथ वो क्या करेंगे? वो हो सकता है कि वो गन नहीं उठाए, पर वो दूसरे तरीके से रेडिकलाइज करने की कोशिश करेंगे लोगों को, और वो हो भी रहा है। और अभी फिर से इस इज़राइल के बारे में बोलते हैं।
बहुत ख़राब सिचुएशन है उधर, और अभी युद्ध तक जा रहा है। हिजबुल्लाह को भी अटैक कर दिया इसराइल ने पूरी तरह। उनका जो पेजर अटैक से पहले उनकी पेजर का जो एक कंपनी लिया, उस कंपनी को लेके उनको पेजर दिया, और पेजर डाल के सब उनके जो ग्राउंड एक मिड लेवल ऑपरेटिव्स थे और लोअर लेवल ऑपरेटिव्स थे, उन सबको ख़त्म कर दिया हिजबुल्लाह के। उनको इतना ज़्यादा डरा दिया है अब तो सब जगह वो समझते होंगे कि ये एक इसराइल की साजिश है। वो साजिश के लिए डरते होंगे। उसके बाद उनकी जो टॉप लीडरशिप है उसको पूरी तरह वाइप आउट कर दिया। तो एंड में ईरान को आना ही पड़ा इनके डिफेंस में। ये जो हिजबुल्लाह है उसके डिफेंस में ईरान को आना पड़ा। ईरान ने अटैक किया बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के ऊपर, बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल डाले, और उनको लग रहा है कि इसराइल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अभी रिस्पॉन्ड स्टार्ट हो गया है। वो जो सीरिया में एक वेपन्स डिपो है रशिया के, उस रशिया के वेपन्स डिपो पे अटैक किया, क्योंकि रशिया इज़ सपोर्टिंग ईरान एंड यूएसए इज़ सपोर्टिंग इसराइल, बट यूएसए इज़ सपोर्टिंग दिस पैलेस्टीनियन पीपल आल्सो, क्योंकि उधर इलेक्शन होने वाला है और उधर बहुत सारे वोटर्स हैं, अरब वोटर्स हैं, मिशिगन में, मिनेसोटा में और भी बहुत स्टेट्स में, जहाँ बैलेंस टिल्ट कर सकते हैं वो लोग इलेक्शन में। इसीलिए उनकी जो लीडरशिप है यूएसए की, वो बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंटली बात कर रही है कि आप डील साइन करिए, डील साइन करिए, डील साइन करिए। इसराइल को प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू को अनाप शनाप बोल रहे हैं। नेतन्याहू जब यूएस के दौरों में गए थे तो ये प्रोटेस्टर्स को उनके घर के बाहर, वो जब रह रहे थे, वो होटल के बाहर खड़ा करके रख दिया। वो चिल्लाते रहे, और उनकी जो गेस्ट हाउस जहाँ से खाना वाना खाते थे उधर भी प्रोटेस्टर्स आ गए। ऐसे ऐसे अनाप शनाप चीज़ें कर रहे थे उधर। ये यूएस का जो पूरा स्टेट है वो पूरा एंटी इसराइल होते जा रहा है। और आप लोगों को तो पता ही होगा, कमला हैरिस इज़ द मोस्ट एंटी इसराइल वाइस प्रेसिडेंट एंड द मोस्ट एंटी इसराइल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट दैट हैज़ एवर बीन। और डोनाल्ड ट्रंप तो बोल ही रहा है कि मैं अगर पावर में आऊँगा तो फिर मैं इसराइल को बोलूँगा आप जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दो इसे, फिर उसके बाद डील करेंगे हम। डील जब ही करेंगे जब इसराइल इज़ गोइंग टू बी द स्टेट विच इज़ गोइंग टू हैव द अपर हैंड। और उनका तो पता ही, आप लोग पूरी दुनिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रो इसराइल प्रेसिडेंट दैट हैज़ एवर बीन। वो पूरी तरह प्रो इसराइल है। उन्होंने तो ये जो टेलीवीव में एक एम्बेसडर उनका हाई कमीशन था, उस हाई कमीशन को इन लोगों ने जेरूसलम में भी लेके आ गए। जेरूसलम इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया, बहुत ज़्यादा लोग डिस्प्यूटेड बोलते हैं उसको, तो फिर उसके लिए तो फिर ये तो मामला बहुत लंबा चलेगा। और इंडिया को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे मामले इंडिया में भी नहीं हो, और पाकिस्तान से भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग कोशिश कर सकते हैं ऐसे, पर उनका इतने ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में इतने ज़्यादा पता नहीं है, तो फिर मुश्किल है, पर कर सकते हैं लोग। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो फिर मैं ये बोलूँगा इज़राइल ज़िंदाबाद और जूइश लोग ज़िंदाबाद। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी ये वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देखिए, क्योंकि ये बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन से दुनिया का बहुत सचित्र होगा। और जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्तों।